Hello, class ninth. So, I have already sent you a few videos based on this chapter. Now, I'll be actually because students are feeling that this chapter is very tough, and the PDFs that I've already sent you, they are actually released by CBSE. So, don't worry about it. Today, I'll try to make you people comfortable because actually the topics that are there in the chapter are not that tough as you have seen in the PDF. So those all the topics from the PDF are not included in our uh, syllabus actually. So that PDF is actually meant to make you people understand or uh, make you people aware of this COVID-19 actually. So don't worry about it. After watching this particular video, I hope and I'm sure that you people will be feeling more comfortable with this uh, chapter. Okay, so let us start. First of all, what is health and its failure? Health is a state of physical, mental, and social well being. The conditions necessary for good health are good physical and social environment, good economic conditions, social equality, and harmony. Actually, health is what? Health is not something that is related to your physical well-being only. Because whenever somebody asks you that are you healthy, तो हम जो सोचते हैं हम सिर्फ ये सोचते हैं कि फिजिकली अगर हम ठीक हैं, वी आर नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर या हमें कोई कोल्ड कफ वगैरह नहीं है, तो एट दैट टाइम वी थिंक दैट वी आर हेल्दी. बट एक्चुअल में हेल्थ इज नॉट अबाउट द फिजिकल well-being only. It is the mental and social well-being also. Mental well-being means whenever somebody asks you about anything, any problem or something like that. So how efficiently your mental, how efficiently you are able to deal with that situation. कोई भी stress आता है and आप कैसे उसको tackle कर पाते हो, कैसे उसको handle कर पाते हो, तो that is your mental well-being. And social well-being means the people who are criminal, like the terrorists, the murderers. All these people are socially not good, or we can say they are very harmful for the society. So at that time their social well-being is not good. So health is not about the physical well-being only. Health is physical, mental, as well as social well-being. So could the conditions which are necessary that are mentioned here, right? uh, so good physical and social environment includes clean surroundings, good sanitation, proper garbage disposal, and clean drinking water. So physically हमें ये सब conditions जो हैं they are required for the physical well-being. Good economic conditions includes job opportunities for all, for earning, to have nutritious food, and to lead a healthy life. So mentally, obviously, if somebody is having stress of earning money, कि कैसे हम पैसे कमाएँगे और क्या होगा? तो at that time also the mental well-being, that is not the state of mental well-being, okay? Social equality and harmony are necessary for a healthy and peaceful life. ठीक है? सोशल इक्वालिटी, अगर आपको हर जगह पे व्हेरेवर यू आर गोइंग यू आर गेटिंग इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़, आप कहीं पे जा रहे हैं एंड आपको अच्छे से ट्रीट किया जाता है, आप सबसे अच्छे से बात कर पाते हैं एंड सोशली आप सबके साथ मिल-जुल के रहते हैं, तो दैट इज़ सोशल वेल-बीइंग. सो ऑल दीज़ कंडीशंस आर मैंडेटरी टू कॉल अ पर्सन हेल्दी. Difference between healthy and disease free, this is very important question from examination point of view. Healthy and disease free are something different. हम बोले सिर्फ disease free हैं तो हम healthy हैं, so that is not the case as I told you in the previous slide. So healthy होता है it's a state of physical, mental and social well-being, I told you. And disease free होता है कि कोई disease नहीं है आपको. बस तब एक person है, एक terrorist है जो कि terrorism फैला रहा है एंड लेकिन वो डिजीज फ्री है, उसको ही इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज, तो उस टाइम पे वो हेल्दी नहीं है, वो डिजीज फ्री है सिर्फ. Healthy, it refers to the individual physical and social environment, and disease free it refers only to the individual. Disease से सिर्फ और सिर्फ individual का लेना देना है, but healthy के लिए हमें
इंडिविजुअल को भी देखना है, फिजिकल इन्वायरमेंट को भी देखना है, और सोशली उसका कैसा उठना बैठना है, उस चीज़ को भी कंसीडर करना पड़ता है इन अ while studying about the healthy individuals. Healthy the individual has good health, obviously good health होगा, वो अच्छे डिसीजन ले सकता है, सोशली सबसे मिलजुल के रहता है, और फिजिकली भी ठीक है, तो वो हेल्दी है. डिजीज फ्री द इंडिविजुअल मे हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ. मे बी उसको डिजीजेस हैं, मे बी नहीं है, तभी हम एक पर्सन को डिजीज्ड बोल सकते हैं, या वो डिजीज फ्री है. व्हाट डज डिजीज लुक लाइक? ओके. So, when a person is affected by a disease, either the normal functioning or the appearance of one or more systems of the body changes for the worse. These changes give rise to signs of the disease called symptoms. On the basis of the symptoms, the physicians look for the signs of a particular disease and conduct tests to confirm the disease. Okay. So we are having different types of diseases. जैसे कभी भी हमको we are not feeling good from inside, like we are having stomach ache or headache, and continuously that thing is those particular problems are taking place in our body. At that time हम क्या बोलेंगे कि yes we have to consult a physician to detect कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमें. तो इन सब चीज़ों को जिनसे हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि मे बी वी आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग, तो हम उन सब चीज़ों को, उन सब साइंस को हम बोलते हैं सिम्टम्स, राइट? Types of disease, basically we have two types of diseases: acute diseases and chronic diseases. Diseases acute वाली कौन सी हैं, जो थोड़े टाइम के लिए रहती हैं, एंड इसलिए क्योंकि दे स्टे इन आवर बॉडी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो इसलिए ज़्यादा लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमारी हेल्थ पे उनका नहीं होता. एग्जाम्पल जैसे कोल्ड कफ आपको बार बार होता ही रहता है, टाइफाइड हो गया, कॉलरा, जो थिंग्स दैट स्टे इन आवर बॉडी फॉर नॉट अ लॉन्ग टाइम, फॉर नॉट लॉन्ग टाइम. अगर लॉन्ग टाइम के लिए होगा तो ऑब्वियसली दे विल बी लाइक दे विल बी दे कैन बी फैटल ऑल्सो, मतलब फैटल मीन्स डेथ कॉजिंग. Chronic diseases जो हो गई, जो the ones that last for a long time and has long term drastic effect on health. हमारी बॉडी में ज़्यादा देर तक है, तो ऑब्वियसली दे विल बी अटैकिंग आवर इम्यून सिस्टम, एंड अगर इम्यून सिस्टम अटैक होगा तो ऑब्वियसली दैट इज़ गोइंग टू कॉज अ ड्रास्टिक और बहुत ही ज़्यादा मेजर साइड इफ़ेक्ट्स होंगे उसके. तो जैसे हो गया डायबिटीज़, ऑब्वियसली डायबिटिक पेशेंट्स हैज़ टू टेक केयर ऑफ his health, rather than, or as compared to the normal people, diabetic patients have to take care of their health. जैसे कि they can't eat the sugar, or they have to keep themselves healthy. uh, like they have to go for walks daily, they have to do exercises, because that only can keep their pancreas or the secretion of their insulin proper, and they have to get their this sugar level checked after every regular interval. So that is very important for a diabetic patient. Similarly, these diseases are there so they can stay in our body for long time, and इसीलिए उनका इफेक्ट जो है हमारे ऊपर ज़्यादा नेगेटिव होता है. इन्फेक्शियस डिजीजेस, कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीजेस, जो इन्फेक्शियस हो गया, जैसे जो एक पर्सन से दूसरे में जल्दी ट्रांसफ़र हो जाए. इन्फेक्शियस डिजीज़ जिनको हम ये भी बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस हो गई जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं. इन्फेक्शियस कौन से, जो इन्फेक्टेड पर्सन से टू अ हेल्दी पर्सन जा सकती हैं थ्रू एयर, वाटर, फूड, वेक्टर्स. वेक्टर्स हो गए एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, जैसे मस्कीटो इज़ अ वेक्टर, फिजिकल कंटैक्ट और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. ओके, ठीक है. तो डिपेंडिंग अपॉन कि किसके थ्रू हो रही है, तो हम ऐसे बोलते हैं, अगर इफ़ यू रिमेंबर इन दैट पीडीएफ ऑल्सो दिस टर्म वाज मेंशन, बॉर्न. सो एयरबॉर्न, बॉर्न, दिस बॉर्न मीन्स थ्रू विच. ठीक है. एयरबॉर्न डिजीज मतलब वो डिजीजेस जो एयर के थ्रू हो. वाटर बॉर्न मीन्स तो वाटर से हो. फूड बॉर्न मीन्स जो फूड से हो. सिमिलरली एंड सो ऑन. फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड जैसे हम बोलते हैं कि इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, तो दैट पर्सन शुड कीप piece of cloth while sneezing or coughing, because that virus will remain there in that particular area, and whosoever will inhale the air containing those droplets, so that person will also catch the common cold.
सो सच काइंड ऑफ डिजीजेस कैन बी कम्युनिकेटेड, मतलब एक पर्सन से दूसरे में जा सकती है। जैसे हम कोविड-19 का देख रहे हैं कि दैट कैन आल्सो बी ट्रांस लाइक दैट इज़ व्हाट और दैट इज़ व्हाई एक्चुअली वी आर एट होम, है ना? लॉकडाउन क्यों है? इसीलिए क्योंकि दैट इज़ आल्सो अ कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, द अदर एग्जांपल्स आर आल्सो मेंशन्ड, चिकन पॉक्स, measles, mumps, typhoid, cholera, tuberculosis, malaria, AIDS, so these are communicable diseases. नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस जो एक पर्सन से दूसरे में कम्युनिकेट नहीं होती, जैसे बेरी हो गया, रिकेट्स हो गया, स्कर्वी हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, डायबिटीज भी एक पर्सन से दूसरे में नहीं जाता, कैंसर भी कम्युनिकेबल नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी को है, सो दैट इज ऑल्सो नॉट कम्युनिकेबल। कॉजेज ऑफ डिजीजेस, डिजीज़ के बहुत सारे कॉजेज़ हैं। पैथोजेंस हम किसको बोलते हैं, जो डिज़ीज़ कॉज़ करते हैं एक्चुअली। तो दीज़ आर यूजुअली द माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, जैसे ये उस पीडीएफ में भी डिस्कस किया था। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोज़ोआन्स और वर्म्स, ठीक है? ये जो हैं दे कैन कॉज़ द डिज़ीज़। पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट, इफ अ पर्सन इज़ नॉट हैविंग गुड हेल्थ का मतलब हो गया कि जो पर्सन है उसका इम्यून सिस्टम जो है वो सही नहीं है, एंड दैट पर्सन इज़ टेकिंग लॉन्ग मतलब दैट पर्सन इज़ टेकिंग सो मच स्ट्रेस, किसी चीज़ से स्ट्रेस, तो उससे भी जो है हेल्थ जो है धीरे-धीरे डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। अंडर नरिशमेंट मीन्स दैट पर्सन इज़ नॉट गेटिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द फूड, ठीक है? उसको सारे के सारे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे, मे बी बिकॉज़ ऑफ पॉवर्टी और समथिंग। माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, कोई भी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट है, जैसे किडनी फेलियर की हम बात करते हैं, तो किडनी जो है दे आर नॉट प्रॉपर्ली वर्किंग, दे आर नॉट लाइक द नेफ्रॉन्स आर नॉट वर्किंग, उनमें जो है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड नहीं हो रहा, तो किडनी फेलियर के चांसेस हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पोल्यूशन में ऑब्वियसली देयर आर वेरी मच सो मेनी केमिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, मतलब दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज पोल्यूशन। तो ऐसी गैसेस इनहेल करने से भी डिजीजेस कैन टेक प्लेस। जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया कि मे बी पेरेंट्स के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ से वो सफ़र कर रहे हैं, एंड वो ही डिजीज़ जो है पास ऑन हो रही है टू द नेक्स्ट जनरेशन, तो उसको हम बोलेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़, इन्फेक्शियस डिजीज़, अब यहाँ पे कौन-कौन से एजेंट्स हैं, जैसे हमने बोला कि ये सारे हम इनको क्या बोलेंगे, पैथोजेंस। तो प्लीज़ स्टडी दिस टेबल प्रॉपर्ली। वायरसेस से हमारे पास ये डिजीज़ेज़ होती हैं, बैक्टीरिया से ये वाली, फंजाई से स्किन इन्फेक्शंस, प्रोटोज़ोआन से वी हैव दीज़ डिजीज़ेज़, वर्म से वी हैव these kind of diseases. So we have to understand, we have to learn what are the various symptoms, although not in details, but still we need to know कि इस डिज़ीज़ में क्या होता है, कौन से ऑर्गन पे ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, सच काइंड ऑफ थिंग्स वी शुड नो, दैट विल टेक लेटर ऑन इन दिस चैप्टर ओनली। Means of spread of infectious diseases, so through air, like I told you, airborne, through water, waterborne, ये वाली diseases हैं, air से ये वाली होती हैं, through vectors, जैसे मैंने बोला, these take place with the help of certain animals, so these are the diseases through vectors. Through sexual contact, syphilis, AIDS, and gonorrhea is also there. AIDS virus can also spread through blood transfusion and from the mother to her child during pregnancy and through breastfeeding. This is very important. So, the sexual contact may we consider AIDS as a major disease. We all know about it. So, sexually be diseases जो हैं they can be transmitted from one person to another. Organ specific and tissue specific manifestations. Some diseases can actually affect a particular organ and some disease can affect a particular tissue. कैसे? Disease causing microbes enter the body by different means and goes to different organs and tissues. Okay? Microbes जो हैं they can enter through different regions of our body. Nose से जा सकते हैं, mouth से जा सकते हैं, and इसी तरह से एंटर करके दे कैन अफेक्ट different organs and tissues. Microbes which enter through the nose are likely to go to the lungs. ये तो सही है। हमें पता है जो भी हम बोलते हैं हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कहाँ से होती हैं, बिकॉज़ हमारा मेन इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन जो प्रोसेस है दैट टेक्स प्लेस थ्रू द नोज़। सो जो नोज़ से जाएगा तो अल्टीमेटली दैट विल एंटर व्हाट आवर lungs. Like example they have given of tuberculosis. Microbes which enter through the mouth are likely to stay in the gut. Gut हो गया हमारा alimentary
कैनाल। तो बैक्टीरिया विच कॉजेज टाइफाइड और टाइफाइड या बैक्टीरिया जो जॉन्डिस करता है, जैसे गट में चला गया, लीवर में चला गया। जॉन्डिस का हमें बोलते हैं ना, आपका लीवर जो है वेन एवर जैसे कि तुम्हें जॉन्डिस मतलब पीलिया हो गया है, एट दैट टाइम जैसे कि आपका लीवर जो है वो अफेक्टेड है। सो दिस इज हाउ द पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स अटैक अ particular organ or tissue. Virus which cause disease enter the body through sexual organs during sexual contact and spread through the lymph to all parts of the lymph। क्या है? एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है जो हमारे ब्लड वेसल से बाहर जितने भी रीजन्स हैं वहाँ पे हमारा जो भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स होता है दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ lymph। लिम्फ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर इम्यून सिस्टम। तो जब कोई भी वायरस अगर लिम्फ में ही ट्रांसफ़र हो गया तो वो हमारे इम्यून सिस्टम पे अफेक्ट करता है। एंड एड्स जो है इट पर्टिकुलरली वीकन्स आर इम्यून सिस्टम। Next, virus which causes Japanese encephalitis, brain fever, enters the body through mosquito bite and goes and infects the brain. See, in all these examples, what we are observing that particular organs or the particular tissues are affected with the help of a particular type of microbe and they are causing a particular disease. Principles of treatment. Principles of treatment means how we can treat a particular kind of disease. The treatment of infectious diseases consists of two steps. They are to reduce the effect of the disease symptoms and to kill the microbes which cause the disease. या तो दो वेज हैं, या तो टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज, उससे क्या होगा, वी टेक मेडिसिन। जैसे हम जो है वी आर हैविंग कोल्ड और कफ तो हम मेडिसिन लेते हैं। एंड व्हेन वी टेक मेडिसिन, ऐसा मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अब कोल्ड हुआ तो कभी लाइफ में होगा ही नहीं, इट कैन हैपन अगेन। तो हम क्या करते हैं, जस्ट हम डिजीज़ को थोड़ा सप्रेस करते हैं। जैसे हमें हेडेक हो रही है, वी आर टेकिंग द मेडिसिन एंड ऐसा नहीं है कि दोबारा कभी हेडेक नहीं होगी। स्टमक एक है, अभी मेडिसिन ली तो दैट डजंट मीन कि दोबारा कभी स्टमक एक होगा ही नहीं। तो मेडिसिन जो है वो एक पेन किलर है जो कि एक डिजीज़ को पर्टिकुलर टाइम के लिए सप्रेस कर देता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि डिजीज़ का जो ओरिजिन है वो ख़त्म हो गया। ठीक है। Take medicines to bring down the effects of the disease like fever, pain or loose motions, etc. and by taking bed rest to conserve our energy. To kill the microbes, this can be done by taking suitable antibiotics and drugs which kills the microbes and the disease is cured. तो इसमें माइक्रोब्स को ही अगर हम जो वॉट एवर इज एक्चुअली कॉजिंग द डिजीज अगर हम उसको ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो डिजीज विल नॉट हैपन अगेन। तो दैट्स वाई सेकेंड वे ऑफ ट्रीटमेंट इज टू किल द माइक्रोब्स। एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेके हम क्या करते हैं, वी किल अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइक्रोब एंड डिजीज जो है उसको क्योर कर सकते हैं।